Hello guys, this is Kuldeep Sharma. Welcomes you on oscillating atoms. We are going to start a new chapter named electric charge. So let's see what is electric charge. Electric charge. Electric charge is the intrinsic property of a matter. So what is electric charge? Electric charge is intrinsic property of matter due to which two bodies can attract or repel each other. If two bodies have electric charge, either it is positive or negative, so they can attract or repel to each other. Agar suppose both are positively charged or both are negatively charged, then they will repel each other. If these are opposite charges, one is positive and other is negative, then they will attract to each other. So what is electric charge? Electric charge basically is the intrinsic property of a matter due to which two objects can attract or repel each other. So let's see what is the SI unit of electric charge. SI unit of electric charge. SI unit क्या है इसका? Coulomb. COULOMB. इसका सिंबल C. चार्ज इलेक्ट्रिक SI यूनिट क्या है इसका? Coulomb. Symbol is C. There are other units. One is smallest, other is biggest, and one is other. So let's see other units. Other units. First of all, I am going to take smallest unit. Smallest unit. What is smallest unit? Smallest unit is ESU. ESU means electrostatic unit. This is the smallest unit, electrostatic unit. So 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised to 9 ESUs. So 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised to 9 ESUs. Another is EMU, named electromagnetic unit. E stands for electro, M stands for magnetic, U stands for unit. So 1 EMU is equal to 10 coulomb. So 1 EMU is equal to 10 coulomb. So EMU is greater than coulomb. ESU is less than coulomb. Third one is Faraday. Faraday. Or this is biggest unit of charge. Biggest unit of charge. And 1 Faraday is equal to 96500 coulomb. So electric charge, actually SI unit is coulomb, and there are other units. First is smallest unit, that is ESU, electrostatic unit, and 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised to 9 ESU. Another is EMU, electromagnetic unit, that is 1 EMU is equal to 10 coulomb, and another is Faraday, that is biggest unit. Faraday is equal to 1 Faraday is equal to 96500 coulomb. Clear? So what is actually, first of all, Benjamin Franklin found the charge in any body. उसने सबसे पहले कौन साइंटिस्ट थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसके नाम पे हम ESU जो यूनिट था उसको हम फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं. तो कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फाइंड किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Positive hold by proton and negative hold by electron. But the magnitude of charge, जो मैग्नीट्यूड था वो दोनों पे इक्वल था. जितना मैग्नीट्यूड इस पे था जो इस पे था, और उसको हमने नाम दे दिया E. इसको हमने दिया 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और दोनों पॉजिटिव कौन होल्ड किया होता? प्रोटॉन को, और इलेक्ट्रॉन होल्ड किया होता नेगेटिव चार्ज. सो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, दैट वाज 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करूंगा तो माइनस 1.6 into 10 raised to minus 19 लिख लेंगे. अगर हम प्रोटॉन के लिए यूज करेंगे तो प्लस 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb यूज कर लेंगे. तो देखते हैं ये चार्ज हुआ कैसे था, उन्होंने देखा कैसे था. सबसे पहले उन्होंने एक बॉडी कंसीडर की. देयर इज अ बॉडी कंसीडर. जैसे मान लेते हैं ये बॉडी है,
इसमें क्या है कि सपोज 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन, सपोज देयर आर 3 प्रोटॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम चार्ज की बात करेंगे तो नेट चार्ज की बात करेंगे। अब इस पर अगर मैं नेट चार्ज देखना चाहूं तो नेट चार्ज किस किस की वजह से होगा, दैट इज ऑल ड्यू टू 3 प्रोटॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये नेट चार्ज हुआ। तो प्रोटॉन पे कैसा होता है प्लस ई एंड इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है माइनस ई। अब ई कितना था हमारा, ई इज 1.6 into 10⁻⁻⁹, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हुआ 0, प्लस 3 माइनस 3 इज 0। तो ऐसी बॉडी को हमने बोला न्यूट्रल बॉडीज, न्यूट्रल बॉडीज। ये कैसी बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी। अगर यही बॉडी, इसका मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया और इस बॉडी में मैंने सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसमें कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो जब इसमें नेट चार्ज में देखूंगा क्यू नेट किसकी वजह से होगा, 3 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 प्लस ई प्लस 2 माइनस ई। तो कितना बचेगा भाई, क्यू नेट इज इक्वल टू प्लस ई, और प्लस ई किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। तो हम कह सकते हैं एक प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो जब चार्ज किसी बॉडी में पॉजिटिव आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो ये बॉडीज कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज। पॉजिटिव चार्ज बॉडीज कौन सी होती हैं, जिन पे क्या हो, चार्ज नेट चार्ज हुआ पॉजिटिव आ जाए। अगर नेट चार्ज 0 है इट मींस न्यूट्रल, इट कंटेन्स नेट चार्ज पॉजिटिव, इट मींस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर यही बॉडी, सेम ये बॉडी, मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया, 3 प्रोटॉन तो एज इट इज है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंसर्ट कर दिया, इट मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज इज 3 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्लियर। तो Q कितना हो जाएगा, प्रोटॉन पे कैसा होता है प्लस E और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है माइनस E। मैंने पहले बोला था इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है माइनस E, तो Q कितना हो जाएगा -1E। तो यहां पे देखो 0 था नेट चार्ज, तो मैंने इसको क्या बोला था न्यूट्रल बॉडी, यहां प्लस है तो मैंने इसको क्या बोल दिया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर यहां पर माइनस है तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। सो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इस पे क्या बोलता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज मतलब न्यूट्रल बॉडी का मतलब यही हुआ ना, जितना नेट चार्ज 0 है मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बट इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या मैं इसको बोल सकता हूं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए क्या बोल सकता हूं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो बॉडी है नेगेटिवली चार्ज बॉडी, आप इसमें देख रहे हो क्या इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें क्या होगा भाई कम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जिस भी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। द बॉडी इज which have number of electron is greater than number of proton is known as negatively charged body. The bodies which have number of proton greater than number of electron is called positively charged body, and जिसमें number of proton is equal to number of electrons है, ये बॉडी कैसी होगी, न्यूट्रल बॉडी। क्लियर, चलो। सो प्रोटॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या था, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है प्लस 1.6 into 10⁻⁻19 for proton and -1.6 into 10⁻⁻19 for electron। अगर यही मैं बात करूं किसी भी बॉडी के लिए तो हम उसमें नेट चार्ज देखते हैं, हर एक बॉडी में चार्ज होता है। अगर ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है मार्कर, इसमें भी चार्ज है बट इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं किसी वायर को छू लेता हूं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम या ज्यादा। दैट्स व्हाई क्या होता है उसमें, वो करंट हमको फील होता है। तो अब देखते हैं क्या हम, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। चार्जिंग हम कैसे कर सकते हैं, चार्जिंग कैसा कर सकते हैं हम किसी बॉडी के लिए, तो चार्ज करने के देयर आर 3 वेज टू चार्ज अ बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन, एंड सेकंड वन इज
conduction, and another one is induction. So what is the basic difference between these three processes? फ्रिक्शन में क्या होता है? What is friction actually? कि फ्रिक्शन में क्या है, दो बॉडीज को हम रब करते हैं। जैसे मैंने रब किया तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे कि निकल के गिर गए, नहीं, रब किया जैसे मैंने, तो एक पे क्या होगा, सपोज इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, अगर इस पे पॉजिटिव आता है तो इस पे नेगेटिवली चार्ज हो। जैसे आपने कभी फील किया होगा कि बालों में आपने पेन रब किया और उसको कागज के क्या कर सकते हो, आप टुकड़े उठा सकते हो उससे। तो कोई एक उसमें पॉजिटिवली चार्ज है और कोई एक क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। सो फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम दो बॉडीज को रब करते हैं, रबिंग ऑफ टू बॉडीज। रबिंग हमने किया, सपोज जैसे ग्लास और सिल्क को रब किया मैंने। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, ग्लास को मैंने क्या किया, ग्लास रॉड को किसके साथ, सिल्क किसके साथ रब किया, सिल्क के साथ। तो जब हम दोनों को रब करते हैं, सपोज ये सिल्क है, ये ग्लास रॉड है, जैसे मैंने दोनों को रब किया, तो जब मैं सेपरेट करूंगा दोनों को, तो इस पे ग्लास रॉड है, ये इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड कैसा हो जाएगा, वही पॉजिटिवली चार्ज, और जो सिल्क होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? अब देखो कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन है कि हम किसी दो बॉडीज को टच कर लें। जैसे कोई एक बॉडी ऑलरेडी चार्ज है तो मैं उसको टच कर लूं, जैसे कोई भी दो बॉडीज है, सपोज ये मेरी बॉडी क्या है, अभी पॉजिटिवली चार्ज है, मुझे दूसरी कोई बॉडी है न्यूट्रल बॉडी जिसको चार्ज करना है, तो सपोज मैंने दूसरी बॉडी लेके आया मैं सिमिलर चार्ज, सिमिलर, जैसे ये मेरी जिसमें क्या है, सपोज 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 प्लस और 2 माइनस लिख सकता हूं। क्लियर? मैंने ये ए बॉडी है मेरी, ये बी बॉडी है, मैंने इसको उठा के इसकी कांटेक्ट में रख दिया, ये बी बॉडी है, प्लस प्लस माइनस, 2 प्लस है 2 माइनस है, तो क्या होगा, देखो ये दो जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये इसको अट्रैक्ट, ये वाली बॉडी क्या है, ये तो न्यूट्रल है भाई, इस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज क्या है, इसका 0 है, और इस पे क्या है, +4e है। क्लियर? तो देखो जब मैं इसको कंडक्ट करूंगा, इसके साथ में इसको ऐड करूंगा, मतलब जब हम इसको कांटेक्ट में रखेंगे इसके, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन इसके बॉडी बी के जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, वो बॉडी बी के दो प्रोटॉन्स को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जब हम कंडक्शन के बाद इनको सेपरेट करेंगे तो ए बॉडी तो कुछ इस तरह होगी और बी बॉडी मेरी कुछ इस तरह होगी, बॉडी ए कुछ इस तरह हो जाएगी, बॉडी बी कुछ इस तरह हो जाएगी। लेकिन ये नेट चार्ज है, जो नेट चार्ज है वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा। देखो आप नेट चार्ज बिफोर, आप दोनों को देखो कंडक्ट करने से पहले का चार्ज, इस पे कितना था 4e, इस पे कितना था 0, तो 4e + 0 कितना हुआ 4e, इस पे कितना हुआ +2e है, अभी चार्ज इस पे कितना है +2e, और इस पे कितना है +2e। अब नेट चार्ज कितना हुआ अगर मैं देखूं तो 4e प्लस का 4, सो नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। थर्ड इज इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, इसमें जैसे हमने क्या किया था, रब किया था, इसमें हमने टच कराया था, इसमें हमको क्या करना होता है, दूसरी बॉडी दूर दूर से इंडक्ट करती है, जैसे एक बॉडी यहाँ रखी है, दूसरी बॉडी उससे कुछ दूरी पे रखी है, तो उसमें क्या होता है, इंडक्शन, दूसरी बॉडी चार्ज हो जाती है। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज ये एक बॉडी हमारी क्या है भाई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, सपोज अगेन ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए है, और दूसरी बी हमारी क्या, न्यूट्रल बॉडी है, बी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। अब इसका शेप और साइज काफी बड़ा है, सपोज जैसे मान लेते हैं इसका शेप और साइज क्या बहुत बड़ा है, तो जैसे मैंने इसको क्या किया भाई, इसको इसके संपर्क में ले गए, तो ये क्या करेगी, इसको इंडक्ट करेगी, जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज है, जो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो इसको रिपेल करेगा, तो सपोज जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। जैसे मैं इसको पास, ये क्या है हमारी चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी में ऐसा तो नहीं है कि कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज मैंने माना 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स हैं, तो जो इसके पॉजिटिवली चार्ज की वजह से ये इसका करेगी, नेगेटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो इसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इसकी तरफ आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जैसे इस पे क्या, अब मैं इसको क्या करूंगा, हम इसको लगाए रखेंगे और मैं इसको क्या करूंगा, ग्राउंड कर दूंगा इस वाले को, तो ये चार्ज तो ग्राउंड हो जाएगा। तो कुछ देखो, पहला प्रोसेस ये, सेकंड प्रोसेस ये। अब सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, इसका तो पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड, तो इस पे कितना बचेगा, नेगेटिव चार्ज।
तो ये हमारी बॉडी कैसी होगी, अब ये ए बी वाली कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। बी इज नाउ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर? हमने क्या किया कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ए क्या है हमारी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, बी कोई न्यूट्रल बॉडी है जिसमें 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं उसको उसके कांटेक्ट में लेके आया, पास में, उसको टच नहीं किया, उसके कांटेक्ट में पास में लेके आया। जैसे ए ये है और बी ये है, तो मैं इसके जो इसमें पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें क्या है, 0 नेट चार्ज है, नेट चार्ज कितना है 0। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ आ जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे इधर की तरफ, और जो प्रोटॉन्स हैं वो इधर की तरफ आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर, प्रोटॉन इधर। अब मैंने इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। जब ग्राउंड कर दिया तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज तो ग्राउंड में चला जाएगा, बचेगा क्या इस पर नेगेटिव चार्ज। तो ए पॉजिटिवली, बी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब एक्चुअल में ये क्या, फ्रिक्शन क्या है कि हम रब करते हैं, और कंडक्शन क्या है, हम उसको टच करते हैं। इंडक्शन क्या है, दोनों को दूर दूर क्या करते हैं, इंड्यूस चार्ज होता है। अब देखो इसमें चार्ज कितना इंड्यूस होता है, इंडक्शन में चार्ज कितना इंड्यूस्ड होता है। तो चार्ज इंड्यूस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है मेटल्स में, सबसे ज्यादा चार्ज इंड्यूस होता है किसमें, मेटल में। सो इसका चार्ज, इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला जो होता है, इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा Q डैश इज इक्वल टू -Q1 अपॉन K। अब K क्या है, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो आप कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और K इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए कितना होता है K, इंफिनिटी। मेटल्स के लिए क्या होता है, इंफिनिटी। K इज इंफिनिटी फॉर मेटल्स। अब आप देखोगे इसमें, अगर आप इसमें इंफिनिटी रखते हो फॉर मेटल, सपोज मैं मेटल के लिए निकाल रहा हूं, तो Q डैश इज इक्वल टू -Q1 अपॉन इंफिनिटी। तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो कितना बचेगा, Q डैश कितना बचेगा, -Q के इक्वल। तो देखो जो चार्ज इस पर रहा होगा बॉडी पे, जो पहले मान लेता हूं, अगर पहले बॉडी पे प्लस चार्ज है इस पे, और अगर मेटल को हम कर रहे हैं तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, बस ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। और 2 कूलम का क्या मिलेगा हमें, -2 कूलम। अगर +2 कूलम है तो -2 कूलम है तो क्या मिलेगा, +2। नेचर क्या होगा, ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। क्लियर? क्लियर? चलो, तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q डैश इज इक्वल टू -Q1 अपॉन K। दिस इज द इंड्यूस चार्ज फॉर्मूला। तो देखते हैं हम प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई चार्ज जो होता है वो 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। ठीक? तो सेकंड वन क्या है, जैसे किसी बॉडी पे चार्ज होता है तो वो क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल कर सकती हैं। सो 2 बॉडीज कैन अट्रैक्ट, 2 बॉडीज कैन अट्रैक्ट और रिपेल। कब रिपेल कर सकती हैं, तो लाइक चार्ज क्या करते हैं भाई, लाइक चार्ज क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला था पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल। तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो देखो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, या क्या है भाई नेगेटिव नेगेटिव है वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। थर्ड इज अगर मैं अनलाइक चार्ज देता हूं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये रिपेल रिपेल और ये अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर? अब थर्ड क्या है भाई, चार्ज क्या रहता है, कंजर्व था। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। जैसा मैंने बोला था बिफोर रिएक्शन इज, जो हमारा 4e था, एक एग्जांपल जिसमें था 4e था, आफ्टर रिएक्शन भी कितना था 4e। तो चार्ज इज कंजर्व। अब आप कोई भी रिएक्शन देख सकते हो, जैसा मैं ले लेता हूं सपोज यूरेनियम 92 238 रिएक्शन ले लेता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या बनता है, थोरियम बनता है 90 234 प्लस 2He4, एम आई राइट? ये रिएक्शन होता है। तो आप इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इधर कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 92, या इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 92, इसमें कितने हैं 90 और इसमें कितने 2। अगर आप बिफोर रिएक्शन रिएक्टेंट का देखोगे, आप रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का देखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। इधर देखो 92, इधर कितना हो गया 92।
तो प्रोडक्ट के भी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 92 और इलेक्ट्रॉन जो रिएक्टेंट है उसके भी कितने हैं 92। सो नंबर ऑफ चार्ज इज कंजर्व, जितना पहले था उतना ही क्या है बाद में। क्लियर। थर्ड वन इज चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज कैसा होता है इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है कि वो क्या करता है भाई स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। फोर्थ इज चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, इट डजंट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ बॉडी, इट डजंट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है कि मास डिपेंड करता है। मास कैसे डिपेंड करता है, अगर आप मास देखोगे तो स्पीड के साथ साथ कैसा होता है मास बढ़ता जाता है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये मास का है। ये रेस्ट मास है, आप कह सकते हो किसी स्पीड पे मास है। लेकिन चार्ज क्या रहता है, अगर चार्ज स्पीड बढ़ा दोगे तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ही होगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड। थर्ड वन इज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। वो कैसे होता है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। सो ये कैसे होता है, चार्ज कैसे मास के साथ एसोसिएट रहता है कि अगर देखो कोई भी मैटर है, मैटर में अगर मास है तभी चार्ज होगा। मैटर कब होगा, जब मास होगा। मैटर है, मास है तो मैटर है, मैटर है तो क्या है चार्ज है। मैटर में क्या होता है चार्ज। तो चार्ज क्या रहता है ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अब हम कह सकते हैं देखो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे मास ऑफ बॉडी कैसे डिपेंड करता है, ऑन चार्जिंग, ऑन चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो। चार्जिंग का मतलब यही हुआ ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इंक्रीज कर रहे हो। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, यही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब मान लो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने उसमें इंसर्ट कर दिए तो 2 टाइम्स इंटू एम ही हो जाएगा। आपने 10 कर दिए तो 10 टाइम्स इंटू एम ही हो जाएगा। मास क्या होगा इंक्रीज होगा, बट इट इज नेग्लिजिबल, लेकिन मास क्या होगा इंक्रीज होगा। तो ऑन चार्जिंग मास ऑफ बॉडी कैसा होता है भाई, मास ऑफ बॉडी क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। और ऑन डिस्चार्जिंग, ऑन डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है भाई कम हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है बॉडी में से डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो मास भी कैसा होगा, मास ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो चार्जिंग में क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स करोगे तो 2 इंटू एम हो जाएगा, 10 करोगे तो 10 इंटू एम हो जाएगा। क्लियर। तो मास क्या होगा इंक्रीज होगा, बट इट विल बी नेग्लिजिबल, सो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। बट ऑन डिस्चार्जिंग यू आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। तो सिक्स्थ इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी क्या है कि देखो अब जब हम चार्ज क्या है भाई रेस्ट पे है, चार्ज की प्रॉपर्टी मान लेते हैं, चार्ज क्या है अभी फिलहाल रेस्ट पे, बॉडी क्या है हमारी रेस्ट पे, चार्ज भी क्या है रेस्ट में। देखो चार्ज की प्रॉपर्टी 7th क्या है, चार्ज क्या है अगर रेस्ट पे है, रेस्ट, रेस्ट मतलब v 0, उसका वेलोसिटी क्या है भाई 0 है, तब वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वन थिंग, अगर चार्ज रेस्ट पे है मतलब क्या उसकी वेलोसिटी 0 है, तब केवल क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज क्या है मोशन में, मोशन में मतलब v इज नॉट इक्वल टू 0, v इज नॉट इक्वल टू 0 बट a इज इक्वल टू 0। मोशन तो है, वेलोसिटी उसकी है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन उसका क्या है 0 है, तब वो क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा और दूसरा क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। एंड थर्ड वन इज अगर मान लेते हैं मोशन में है लेकिन अब क्या वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, मोशन का मतलब एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं एक्सीलरेटेड मोशन। अगर चार्ज क्या एक्सीलरेटेड मोशन में उसका एक्सीलरेशन भी कुछ है तो क्या करेगा वो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, रेडिएशन क्या करेगा वही प्रोड्यूस करेगा अलोंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
तो दोनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्या करेगा, रेडिएशन। अगर चार्ज का रेस्ट में वेलोसिटी जीरो तब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। वन थिंग, चार्ज मोशन में वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। अब एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो एज वेल ये एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मींस रेडिएशन अलोंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। एट्थ प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज देखा होगा जब जब भी मैंने बोला है तो ऐसा बोला है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन, ये रब कर दें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो नहीं बोला मैंने कि 3.5 इलेक्ट्रॉन्स की किसी बॉडी पे 2.7 प्रोटॉन्स आर देयर, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। तो चार्ज क्या है, ऑलवेज क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहता है ना। क्या होगा कि या तो बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा कुछ रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2.7 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो क्या करना है हमको कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब कि n क्या होगा हमारा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4 अप टू डेस, इस तरह होगा। n आपको सपोज अब प्लस, अगर q इज इक्वल टू प्लस n ही लिख रहे हो आप, प्लस मतलब क्या है, e क्या ले रहे हो आप, प्लस ले रहे हो, तो ये किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए है। अगर q इज इक्वल टू माइनस n लिख रहे हो तो ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ई, और प्रोटॉन का हम क्या लिखते हैं, प्लस ई। क्लियर। तो चार्ज क्या रहता है हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में। n आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह है ना, कि आपको कहीं मिल गए 20 इलेक्ट्रॉन्स, कहीं मिल गए 30 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हाँ, एक और लिख सकते हो आप, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर इसका मतलब क्या है कि चार्ज क्या होता है, वो एल्जेब्रिकली ऐड हो जाता है। कि मान लो 2 प्रोटॉन्स है, जैसे मैंने ऐड भी किया था कि कोई बॉडी है जिस पे 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं डायरेक्टली 3 प्रोटॉन्स और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह कर दिया था टोटल चार्ज। तो हम उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं कि अब अगर आपको 20 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, किसी में 5 है किसी में 2 है, तो आप 5 + 2 कर सकते हो। 20 दिया हुआ है, आप उसको ब्रेक कर सकते हो 10 + 10, कुछ भी कर सकते हो यानी। तो चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। सो माइंड दीज प्रॉपर्टीज and must you have to learn properties. So let's see what is first example देखते हैं हम क्या है। जैसे ये कोई बॉडी है, इस पे क्या है 3e 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, ये अलग अलग आइसोलेटेड सिस्टम्स है। ये अलग अलग क्या है इसमें सिस्टम्स है, और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में बनते हैं। ये सिस्टम है और ये चार्ज क्या है उसके अंदर है। तो इस पर नेट चार्ज अगर पूछता है तो आप कितना बताओगे भाई, 3 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम या +- 3 माइक्रोकूलम। क्लियर। तो ये आपको नेट चार्ज कितना मिल जाएगा, 2 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रो। तो हमें ये चार्ज कैसा मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला। तो पॉजिटिव चार्ज मिला मतलब ये कैसी बॉडी है भाई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमको मिली। क्लियर। ठीक है, ये तो जस्ट एग्जांपल था। अब देखते हैं हम पहला एग्जांपल, अच्छा था जो एनसीईआरटी में भी आया हुआ है कई बार। तो क्वेश्चन इज फाइंड द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन 250 ग्राम वाटर। तो उसने बोला है कि हमको चार्ज बताना है 250 ग्राम वाटर में कितना होगा। तो देखो 250 ग्राम वाटर में क्या होगा, हमको वो चार्ज बताना है पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। अब वाटर वैसे तो है नहीं कि हमें करंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या चार्ज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज किसके होगा, नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। तो हमको एक चीज फाइंड कर लेते हैं कोई भी। तो पहले देखते हैं इसमें मोल्स कितने होते हैं, है ना। तो कितने मोल्स होते हैं इसमें, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वो देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आंसर। देखो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट। देखो H2O है ना, H2O, H का कितना होता है 1, तो 2 H है, इसका 2 हुआ
2 इसका हो गया और O का कितना होता है 16, तो ये कितना होगा 18 हमारा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ग्राम वाटर, 250 ग्राम वाटर कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, एक मोल में कितना है 18 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट उसका 18 ग्राम है, तो 250 ग्राम में कितना हो जाएगा 250 बाई 18 कितना हुआ भाई हमारा, कितने हुए नंबर ऑफ मोल्स, आप इसको डिवाइड करोगे तो 13.88 अराउंड आपको मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 250 ग्राम में कितने मिले हमको 13.88, और एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल कितने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल आपको पता ही होगा कितने होते हैं भाई, कितने होते हैं अवोगाद्रो संख्या के नंबर, दैट इज 6.023 into 10⁻23। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मोल, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, अब हमको निकालने इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सो द मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम वाटर, 250 ग्राम में मोल कितने 13.88 और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6.023 into 10⁻23 into 13.88। क्लियर, ये क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम वाटर। अब देखो वन मॉलिक्यूल में, अब देखो इसमें जो है हमारा H2 है उसका कितना प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में, आप निकाल सकते हो। तो देखो H2 में कितना प्रोटॉन है कितना इलेक्ट्रॉन है, तो H2 में कितना होगा 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, और O में कितना होता है 8, क्लियर। तो देखो H2 में कितना हुआ, H2 में कितना हुआ 2, O में 8, इट मींस 10, तो टोटल इसमें 4 प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 250 ग्राम वाटर कितना हो जाएगा भाई, देखो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल में कितने 10 प्रोटॉन्स हैं, 250 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये इतने मॉलिक्यूल्स किसमें 250 ग्राम वाटर में। अब आपको निकालनी है कितने, एक मॉलिक्यूल में कितना है भाई 10 प्रोटॉन्स या 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने में कितने हो जाएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 6.023 into 10⁻23 into 13.88, ये क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 250 ग्राम वाटर। इज इट क्लियर, हमने क्या किया पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया दैट इज 2.2 + 16 18, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, फिर नंबर ऑफ क्या किया मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, फिर मॉलिक्यूल से हमने क्या किया प्रोटॉन्स निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है E के इक्वल, मतलब 1.6 into 10⁻19 कूलम, तो इतने प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होगा वो हम निकाल दे, चार्ज ऑन 250 ग्राम वाटर, और वो कितना हो जाएगा 1.6 into 10⁻19 into 10 into 6.023 into 10⁻23 into 13.88 कूलम, क्लियर। और इसको आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 1.33377 ऐसा कुछ into 10⁻7 कूलम, 10⁻7 कूलम, ये आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा, क्लियर। तो हमने क्या किया भाई, देखो सबसे पहले हमने 250 ग्राम वाटर था हमारे पास, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाए 2 + 16 मतलब 18 ग्राम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ग्राम कितने हुए 250/18 मतलब 13.88 हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं 1 मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल 6.023 into 10⁻23, जो हमें निकालना है 13.88 में, हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया 13.88 में। अब एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स है कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने देख लिया, 2 + 8 मतलब 10 प्रोटॉन्स है 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमको निकालना है इतने में कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस वाटर 10 into 6.023 into 10⁻23 into 13.88, ये हो गया हमारा n। अब इसमें हमको क्या निकालना है भाई चार्ज, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10⁻19 प्लस का, क्लियर, मतलब प्लस 1.6 into 10⁻19 कूलम, जैसे ये लिखा हुआ है, तो
तो इतने में हमको निकालना, मल्टीप्लाई करके हमने ये टोटल चार्ज निकाल लिया। ये कितना होगा 1.377 इंटू 10⁷ कूलम। क्लियर। सो हमने क्या किया, मोल्स निकालना है हमको, और उसमें हमको एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ चार्ज फाइंड करना है कि कितना चार्ज हो सकता है उस पर। देन n मिल गया हमको, तो क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू एन ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन इज सेकंड नंबर की दो बॉडीज है ए एंड बी और सी, तीन बॉडीज है ए बी एंड सी। ए और बी क्या करती हैं भाई, ए और बी करते हैं रिपेल, और ए और सी क्या करती हैं अट्रैक्ट। तो हमें रिलेशन बताना बी और सी क्या करेंगे। तो देयर आर थ्री बॉडीज ए बी एंड सी, ए एंड बी रिपेल, बी ए एंड सी क्या करती हैं अट्रैक्ट। ए और बी क्या करते हैं, ए एंड बी क्या करते हैं रिपेल, और ए एंड सी क्या करते हैं हमें अट्रैक्ट। तो हम बताना बी और सी का रिलेशन क्या होगा। तो बी और सी का रिलेशन बताना है हमको। तो देखो इसके दो केसेस हो सकते हैं। केस वन क्या हो सकता है कि देखो रिपेल करने का कंडीशन क्या है कि दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, या दोनों पे क्या हो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो। मतलब मान लिया मैंने ये ए बॉडी है हमारी और ये बी बॉडी है। अब क्या करेंगे, दोनों रिपेल करेंगे, सेटिस्फाइड कंडीशन। क्लियर। दूसरा क्या हो सकता है कि दो इस पे भी नेगेटिव चार्ज और इस पे भी नेगेटिव चार्ज, ये ए और बी। देखो दो केसेस हो सकते हैं, केस वन एंड केस टू। दोनों में क्या, केस वन में क्या होगा कि मान लेते हैं रिपेल करने के लिए क्या दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तब भी क्या करेगा रिपेल। और दूसरा क्या है, ए और सी क्या करते हैं हमारे अट्रैक्ट। अब अगर ए पॉजिटिव है, सपोज ए पॉजिटिव है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर ए पॉजिटिव है तो सी कैसा होना चाहिए नेगेटिवली चार्ज, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। ये ए और सी, उसने बोला है कि ए और बी रिपेल करते हैं, इसको भी भूल जाओ आप, ए और बी रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने के लिए क्या है, मैंने क्या ले लिया पॉजिटिव चार्ज ले दोनों पे, तो ये रिपेल करेंगे, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको रिपेल करेगा। अब उसने सेकंड कंडीशन में बोला ए और सी क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करने का क्या है भाई, ए और सी क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने ए को पॉजिटिव तो है ही ऑलरेडी हमारा फिक्स हो चुका है, सी को क्या ले लिया नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो उसने बोला है कि बी और सी का रिलेशन क्या होगा। तो बी और सी क्या करेंगे, तो बी और सी का नेचर कैसा हुआ, बी हमारा कैसा है प्लस है और सी कैसा है नेगेटिव है। तो ये दोनों क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। बी और सी क्या करेंगे भाई अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब मैं केस सेकंड की बात करता हूं भाई, यहाँ प्लस प्लस लिया, मैं यहाँ माइनस माइनस ले लेता हूं। तो माइनस माइनस लेंगे, वो भी क्या करेंगे रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ए कैसा है हमारा, सेकंड कंडीशन क्या है, ए और सी क्या करते हैं अट्रैक्ट। अब ए का चार्ज तो माइनस फिक्स हो गया, ए इज माइनस। अब अट्रैक्ट करने के लिए सी को कैसा होना चाहिए भाई पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। क्लियर। ए और सी को क्या होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज, तभी तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अब यहां पे देखो ये कैसा है बी, बी कैसा है हमारा, बी जो है वो कैसा है नेगेटिवली चार्ज और सी कैसा है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या करेंगे अट्रैक्ट। तो आप दोनों केस में देखोगे आंसर क्या है दोनों में अट्रैक्ट है। तो क्या था कि दो केसेस थे कि ए और बी क्या करते हैं रिपेल, ए और सी क्या करते हैं अट्रैक्ट। तो ए और बी रिपेल करने के लिए दो चीज हो सकती है रिपेल करने के लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तब भी अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव तब भी क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, बी और सी। सो दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड थैंक यू सो मच।